Hello everyone, welcome to Stay Update presented by JK Rakan. So friends, in this video we are present here with a very good news for all those candidates who have recently completed their Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Diploma in Engineering in specific, because an official notification of apprenticeship vacancies under Liquid Propulsion System Center has been declared, and all those candidates who have completed their degree or diploma are eligible to apply under this apprentices vacancies. So friends, in this video we shall discuss in a very comprehensive way how to apply under this vacancies and what will be the eligibility criteria and what will be the selection criteria, because under this apprenticeship vacancies there will be no examination, no interview will be conducted. Only on the basis of your marks that you have scored in your diploma or your degree, on that marks you will get shortlisted, and then after shortlisting you will be called for the document verification, and after document verification you will be indulged in the apprenticeship 1 year training in the organization. So in this video we shall discuss all the doubts that are present in your mind, and we hope that at the end of this video all the doubts related to this apprentice vacancies will be clear in your mind. So apply under this apprenticeship vacancies, that we shall discuss at the end of this video. And one more important thing is that there will be no application fees in order to apply under this apprenticeship vacancies. So friends, let's start the video. So friends, firstly, in order to download the official notification you need to come on this portal, NATS portal, and here you can easily see under the announcement section there is an official notification. You need to click on the more announcements. So after clicking here on the more announcement, you can easily see here that is the apprenticeship vacancies for graduate and technician in Liquid Propulsion System Center has been uploaded here. You can easily click on this and official notification will be downloaded in your mobile. So friends, we can easily open this official notification and then discuss the criteria one by one. So friends, we are going to start this conversation in a bilingual way so that all the candidates can understand the things in a very optimum and effective way. सो फ्रेंड्स, ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं। इसके अंडर जिन कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन यानी कि बीई बीटेक जो है इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा कर रखा है 2019, 20 और 21 में, वो सारे कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा है वो इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन में होने चाहिए, जो कि हम नीचे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में फिर जब आपका यहाँ पे 1 साल ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहेगा तो इसके दौरान आपको स्टाइफन भी दिया जाएगा। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्किंग कल्चर आता है, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रहते हैं, और फर्दर आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन एंड नॉलेज का जो आपका डोमेन रहेगा वो भी डेफिनेटली आपका एनहेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग वहां पे परफॉर्म करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर जो यहाँ पे बीई बीटेक वालों के लिए रहेगी ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस, उनकी यहाँ पे जो डिग्री है वो इन सारी ब्रांचेस में होनी चाहिए, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर केमिकल या सीएससी सिविल या फिर लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी बीई बीटेक मैकेनिकल में कर रखी है उनके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। ट्रेनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 साल की रहेगी और स्टाइफन यहाँ पे केवल 90,000 रुपीज़ रहेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा इन सारी डिसिप्लिन में कर रखा है वो कैंडिडेट यहाँ पे इसके अंदर टेक्नीशियन अप्रेंटिस के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टाइफन यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रहेगा। ट्रेनिंग का टाइम पीरियड 1 साल सेम रहेगा और लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं केरला में त्रिवंतपुरम, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ग्रेजुएट यानी कि बीई बीटेक वालों की यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और कम से कम 65% होनी चाहिए। आपकी अगर 65% से कम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। और जो टेक्नीशियन वाले रहेंगे यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी यहाँ पे 60%
परसेंटेज से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फ्रेंड्स रहेगा। और एज यहाँ पे रहेगा अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने रिसेंटली अपनी बीई बीटेक 19, 20 और 21 में कर रखी है, जिनकी एज जो है वो 22 से 25 ईयर्स के बीच में फॉल करती है, फ्रेशर कैंडिडेट्स, वो यहाँ पे सारे एलिजिबल रहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो आपने मार्क्स ले रखे हैं अपनी बीई बीटेक ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि बीई बीटेक कैंडिडेट्स के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए जो उन्होंने अपने डिप्लोमा में सेमेस्टर वाइज मार्क्स ले रखे हैं, उसके बेसिस पे फ्रेंड्स आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपकी एक शॉर्टलिस्टेड जो लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी। जिन कैंडिडेट्स का नाम उसमें आ जाता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके मार्क्स हैं अपनी बीई बीटेक या फिर आपका डिप्लोमा में, उतने आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका नाम आने के। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। रखना है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आज से फिल होना शुरू हो चुका है, आपका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, आपको जस्ट अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है वो आपकी 2 अगस्त 2021 से डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो है वो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन रहेगी, जो यहाँ पे एड्रेस मेंशन्ड है। और उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाती है, देन आफ्टर फिर आपको जो है इंडल्ज किया जाएगा आपका जो 1 साल अप्रेंटिसशिप का कोर्स रहेगा। और उसके बाद आपको मंथली बेसिस पे फ्रेंड्स वहाँ पे स्टाइफंड भी रहेगा। वहाँ पे आपका काम कोई नहीं रहेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, आपको वहाँ पे चीज़ें समझाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं, उससे रिलेटेड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ में ही वो वीडियो आएगी कि इसके अंडर आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।